So let us start revision from Peninsular Plateau. Revision for your half-yearly exam from lesson 2. Topic is Peninsular Plateau. After completing this, we shall proceed to the next topic also. Yes. Okay. So first question. What do you know about the formation of Peninsular Plateau? In the first few lines. Peninsular Plateau Ma'am. formed due to The breaking and lifting of Can I? so it is a part of oldest land masses. One of you, again Utkarsh, you start saying. And metamorphic rocks. Ma'am, I read. It was formed due to the breaking of Gondwana land. ठीक है, इसमें गोंडवाना लैंड का रेफरेंस आना चाहिए. Peninsular Plateau is the oldest part of India, oldest physical division of India because it is the part of Gondwana land. And what are the rocks? The rocks. Ma'am, what Metamorphic rock. Metamorphic rock. हाँ, इसको क्या बोलेंगे? Crystalline, igneous and metamorphic rocks. Crystalline, igneous and metamorphic rocks. This plateau is also known as tableland. Why it is known as tableland? Because it is a very high land. The top is flat. So it is known as tableland and it is composed of crystalline, igneous and metamorphic rocks. Amrit Gautam, repeat all these Yes, points. ma'am. Repeat all these points which we have just now discussed. Ma'am. Yes, ma'am. The Peninsular Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. हाँ, गोंडवाना लैंड है ना, बढ़िया से बोलो इसे. कैसे बोलते हैं? गोंडवाना लैंड. Yes, ma'am. हाँ, स्पेलिंग Yes, भी ma'am. याद कर लो. Gondwana land. हाँ, what Yes, is the ma'am. spelling of Gondwana? Amrit? Ma'am, spelling of Gondwana GONDWANA. हाँ, गोंडवाना लैंड. और अर्थ का जो सबसे पुराना लैंड मास था, जो जायंट लैंड मास था, जो सिंगल कॉन्टिनेंट था पूरे अर्थ पे, है ना, बहुत पुराने समय में, बहुत जियोलॉजिकल पास्ट में कहें तो उसका क्या नाम था बताओ? मैं बताऊं? हाँ बताओ. Pangaea. हाँ हाँ. What is the spelling of Pangaea? Pangea. हाँ, Pangea, Pangaea. And when Pangaea was divided into two parts, what were the names of the northern and the southern land? Gondwana and Gondwana and Gondwana. Say Gondwana land in the south and Angara land in the north. Pangaea जब दो पार्ट्स में बटा तो जो नॉर्दर्न हाफ था ऑलमोस्ट, उसका क्या नाम हुआ? एंगारा लैंड. और जो सदर्न पोर्शन, Angara land and Gondwana land in south. ठीक है. और दोनों के बीच में कौन सा शैलो सी था? Tista. टेथिस. नो, टेथिस. टी स्पेलिंग बोलो. THETHIS. TH. हाँ. TETHIS. YS. YS होगा मैम. हाँ. TETHIS. हाँ, टेथिस. तो ये बेसिक चीज है ना कि सबसे पहले एक सिंगल लैंड मास था जिसका पैंजिया नाम था. डिवाइड होने के बाद एंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बना और गोंडवाना लैंड के ही ब्रेकअप होने से फिर ये पेनिनसुलर इंडिया बना है. ठीक है ना. इसलिए इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो ओल्डेस्ट लैंड मास है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. और रॉक्स का क्या टेक्सचर, क्या कंपोजिशन है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स.
अब आगे बताओ, what are the two divisions of peninsular plateau? Ma'am, Central Highland and Deccan. Central Highland and Deccan Plateau. उत्कर्ष Yes, ma'am. फिर से बोलो। Hence and the Deccan Plateau. Highland. हाँ, Central Highland and Highlands lie on the north of Narmada Deccan River, Plateau. and the Deccan Plateau lie on the south of the river Narmada. हाँ, okay. तो यहाँ से देखो, the plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। यहाँ ये लाइन, ये सेंटेंस देख रहे हो, the plateau has broad and shallow valleys. वैली मतलब जो माउंटेन्स के बाद जो प्लेन लैंड होते हैं उसको वैलीज कहते हैं। तो वैलीज किस तरह के हैं? शैलो हैं, बहुत डीप वैली नहीं है। और हिल्स कैसे बन गए हैं? राउंडेड हिल्स हो गए हैं, कोई भी कॉनिकल हिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इरोजन होता चला आया है। ये हिमालय से बहुत बहुत पुराना ये लैंड मास है ना। इट इज क्वाइट ओल्डर देन द हिमालयाज। हिमालयाज आर न्यू इन देयर फॉर्मेशन and the peninsular plateau is quite old. तो ओल्ड होने की वजह से क्या हुआ है बताओ, कि जो जितने भी माउंटेन्स है ना, चाहे वो वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट, अरावली, सतपुड़ा, विंध्या, ये सारे माउंटेन रेंज राउंडेड हो गए हैं। मतलब कोई भी कोनिकल पीक नहीं है ना, सभी राउंडेड हिल्स हैं। टू ब्रॉड डिवीजन के नाम बता दिए। ऋषि इज प्रेजेंट। Name two broad divisions of peninsular plateau. Ma'am, can I? क्या मैम बोलिए? Name two division of the peninsular plateau again. Central Ma'am, Highlands and Can I? Deccan Plateau. And Deccan Plateau. हाँ, Central Highland and Deccan Plateau. अब Central Highland का तुम डिटेल बताओ, सेंट्रल हाईलैंड को किस तरह Ma'am, से डिस्क्राइब can I? करेंगे? मैं हाँ, बताऊं? The Yeah. part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada The River, range is bounded by covering a Central major Highlands area on the of south the and the Malwa Aravalli Plateau is known as Hills on the the Central Highland. northwest. मैं बताता हूँ मैम क्लियरली। one at a The time, Deccan Plateau one, is the only last one at a time. बोलो। This is a part lying The on the north of Vindhya Range. Narmada River, covering most of the The Malwa plates are surrounding by water surrounded from by three within bodies is called increased peninsular boundless plateau. on the south and Aravalli on the northwest. In the Ma'am, west, it Deccan is Plateau well is the funded last with plateau in the standing and western rocky and southern Himalayas. India. It The rises to central 100 highland meters in slopes the north and west to to more than northeast, 1,000 meters in indicated south, by the flow of forming a Chambal rising Sea, triangle Bedrock, and within Main the River. south pointing Highlands triangle are of the located Indian in west but narrow coastline. in the east. अरे Its राम, एक was साथ नहीं बोलो, एक को बोलने दो। हाँ, Bundelkhand and Bhagelkhand. The Chota Nagpur Plateau lies in the further east और of the तुम तो highland मुझे and बोलने लगे। drained by Narmada. हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसके एक्सटेंशन के बारे में बताएंगे मैम, और ये इसके लार्जेस्ट प्लेट्यू है। हाँ बाउंड्री कैसे बनते हैं इसके सेंट्रल हाईलैंड के, वो triangular। बताएंगे। सेंट्रल Surrounded by हाईलैंड के within नॉर्थ range. वेस्ट में क्या है बोलो? सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर कैसे बनता है? By the Aravallis. हाँ, बाय अरावली रेंज। अरावली रेंज फॉर्म्स द वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। और सदर्न बॉर्डर कैसे बनता है बताओ? विंध्या रेंज, विंध्या रेंज से, ठीक है ना। और विंध्या रेंज के बाद कौन सी रिवर है तुरंत बताओ? ये देखो तो, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर covering a major area of the Malwa plateau is known as the Central Highland. The Vindhya range is bounded by Central Highland on the south and the Aravalli on the northwest. अच्छा, further westward extension वो किस में मिल जाता है वेस्ट की तरफ जाके? डेजर्ट में, सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान विच इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। मतलब अरावली के वेस्ट में अगर बढ़ेंगे तो डेजर्ट शुरू हो जाता है। और ईस्टर्न तरफ देखो
सबसे पहले ये बताओ कि मालवा प्लेटो कहाँ लोकेटेड है? Any one of you? Central Highland. Central What is the exact location of Malwa Plateau? North of Vindhya Range. North हाँ, of तो- Vindhya Range. और कंप्लीट कैसे बोलेंगे कि मालवा प्लेटो लाइज बिटवीन अरावली एंड द विंध्या रेंज. रिपीट दिस सेंटेंस. Malwa Plateau lies between Aravalli Range and Vindhya Range. हाँ, वेरी गुड. एंड व्हाट इज अ रेंज, मान्या? How will you define a range? A chain of mountains. A It's called chain range. of mountains. A chain of Yes, a chain of mountain is known as a range. What is a peak? A single mountain with Single a mountain shape in the top. in which conical Top shape. is conical. A single mountain in which the top is conical is known as a peak. हाँ ना? For example, Kanchenjunga, Mount Everest, Nanda Devi, Makalu, Dhaulagiri, Namcha Barwa, all these are the peaks of the Himalayas. और आगे आंसर करो अनुष्का. I'm giving you the question. Name the other plateaus east of Malwa Plateau. मालवा प्लेटो से अगर ईस्ट की तरफ Bundelkhand and बढ़ेंगे Bhagelkhand. तो कौन कौन से प्लेटोज हैं? Bundelkhand and Bhagelkhand. हाँ, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. यहाँ देख रहे हो, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. Bundelkhand and Bhagelkhand. हाँ, और बघेलखंड के भी और ईस्ट में चलेंगे तो क्या शुरू हो जाता है? छोटा नागपुर. Chota Nagpur Plateau. ठीक है. So this is all about the Central Highland. Peninsula. एक चीज और बच गया. हाँ, अभी कौन आंसर करेगा? पहले अपना नाम बताओ. Who wants to give the answer? Ma'am, I'm Utkarsh. Ma'am, अच्छा, Hari अच्छा, Ram. पहले हरे राम से पूछ लेते हैं. हरे राम, name the rivers, 4 rivers which are flowing northward from Central Highland to join river Yamuna. Ma'am, can I? Can I say? पहले हरे राम को चांस दो. Ma'am, You know, ma'am, क्या बोली आप मैम? हरे राम, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है उससे निकलने वाली रिवर्स जो है, जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करके यमुना में मिल जाती है, उसके नाम बताओ. हरे राम ने ठीक से नहीं पढ़ा है ना. गंगा. कोमल, यू River आंसर. Champa, Ma'am, River Champa, Sindh, Betwa and Chambal, Sindh, Betwa, एंड केन. Ken. KEN, Ken. केन. हाँ, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन. Betwa, Ken. हाँ, अब से याद कर लो सभी लोग. हरे राम, now you repeat what are the 4 rivers flowing northward. पूजा कुमारी, अच्छा एडमिट नहीं है. पूजा कुमारी, what are the 4 rivers flowing northward from Central Highland? Arpana, give the answer. Chambal, Betwa, Sindh, Ken. हाँ, Chambal, Sindh, Betwa and Ken. हाँ, चंबल, बेतवा, सिंध. SIND. Ken. What is the spelling of Sindh? SIND, Sindh. SIND. हाँ, and Ken, KEN, Ken. So this is all about the Central Highland. तो Central Highland में क्या क्या नाम आया? अभी सुनो मेरे से कि किन किन चीजों का रेफरेंस देना है. अरावली माउंटेन, विंध्या माउंटेन, नर्मदा रिवर, मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटो. इतना नाम मेंशन होना चाहिए. और फिर रिवर्स में चंबल, बेतवा, सिंध एंड केन. इतना, ये मेन पॉइंट्स हो गए सेंट्रल हाईलैंड के. ठीक है. अब दूसरी तरफ आ जाओ. सेकंड कॉलम, डेक्कन प्लेटो. व्हाट इज द शेप ऑफ डेक्कन प्लेटो? Triangular. Triangular in Triangular. shape. हाँ, Because it bonded 3 rivers. and lies to the south of the Of Narmada Narmada river. River. नर्मदा रिवर के साउथ में.
The Satpura range flanks its broad base. और ट्रायंगल का जो बेस होता है वो कौन सा माउंटेन बना रहा है नॉर्थ की तरफ? सतपुरा सतपुरा। range. हाँ, Satpura range. इन द नॉर्थ। और सतपुरा के साउथ में बहने वाली जो रिवर है वो उसका नाम है तापी रिवर। Kaveri. तापी तापी आप हाँ। और सतपुरा के नॉर्थ में जो रिवर बहती है ना वो तुम ये जरा मैप तुम देख ही लो, पेज नंबर, Narmada. हाँ मैप को एक बार फिर से देखो। कौन से पेज में है बोलो? पेज नंबर 10। Ten. हाँ यहाँ देखो, ये देख रहे हो विंध्या रेंज दिखा? विंध्या के ठीक साउथ में क्या है? रिवर नर्मदा है ना। उसके River बाद सतपुरा रेंज, और सतपुरा के ठीक साउथ में क्या है? तापी रिवर। आप Tapi. तो इसका लोकेशन को एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी नर्मदा मार्क करने के लिए आता है और कभी तापी मार्क करने के लिए आता है। Tapi. तो ये माइन्यूट डिफरेंस याद रखना कि विंध्या से जस्ट साउथ में नर्मदा है और सतपुरा से जस्ट साउथ में क्या है? तापी रिवर है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सब चंबल, बेतवा, सिंध और केन रिवर्स है। वाई सुधांशु इज सोलेट। अच्छा, अब ये हम लोग डेक्कन प्लेटो के बारे में पढ़ रहे, तो डेक्कन प्लेटो का ये ब्रॉड बेस ये हो गया, सतपुरा रेंज बनाता है इसका बेस, नदर्न बेस। और वेस्टर्न एज कौन सा माउंटेन बनाता है बोलो? Western Ghat. Western Ghat mountain forms the western edge of the Deccan plateau. Edge मतलब किनारा। इस प्लेटो का किनारा वेस्ट में कौन सा माउंटेन बनाता है? वेस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक है। और ईस्ट में कौन सा माउंटेन इसका एज बनाता है? Eastern Ghat Mountain. ईस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक है। तो ये तीन माउंटेन रेंज तो मेन हो गए, सतपुरा, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट माउंटेन। अब इसके बाद सतपुरा के साथ साथ महादेव, मैकल, ये सब भी रेंज है यहाँ पर, है ना। महादेव एंड मैकल रेंजेस। और ये जो डेक्कन प्लेटो है इसका स्लोप किधर है बताओ? मैप देखने से क्या पता चल रहा है? टुवर्ड्स which direction is the slope? The slope currently in eastwards. The slope is towards east, towards the Bay of Eastward. Bengal, है ना। ईस्ट की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ स्लोप है। ये कैसे पता चलता है? बाय द फ्लो ऑफ द रिवर्स। सारी रिवर्स इधर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। All the rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri are draining into Bay of Bengal, which shows the slope of the land, that the Deccan Plateau slopes towards east and the Central Highland slopes towards north. These are proved by the flow of the river, है ना। रिवर इसको बताती है कि रिवर वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वही उधर लैंड का स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ के रिवर कौन कौन से हो गए? महानदी, महानदी का लोकेशन, Mahanadi, Godavari. ये एग्जाम में मार्क करने के लिए आता है, रिवर महानदी। तो इसका प्लेस अच्छे से देख लो, रिवर महानदी। फिर यहाँ जो लैंड का दो बल्जिंग है ना, यहाँ देखो, इसमें ऐसे गोदावरी पहले वाला डेल्टा है गोदावरी का, ये है ना। और दूसरा क्या है? रिवर कृष्णा का ये सेकंड डेल्टा है। Krishna. हाँ, पहले गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, और तब यहाँ पे चेन्नई के कावेरी। पास क्या है? कावेरी रिवर, Kaveri. तमिलनाडु के कोस्ट में कावेरी रिवर, ठीक है। अब इस पोर्शन से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टर्न घाट माउंटेन एंड ईस्टर्न घाट माउंटेन। तो इसका आंसर पढ़ के सुनाओगे तुम लोग, हमने जो नोट्स दिया है उससे। जिसको याद है वो ऐसे ही सुनाओ। कॉपी लेके बैठे हो ना? Western Ghats are continuous chain of hills. Eastern Ghats are discontinuous chain of hills. वेरी गुड। Western Ghats run almost parallel to the western coastal plains, हाँ and Eastern Ghats run parallel to the eastern coastal plains. हाँ, तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट लिखे ना, इसको फर्स्ट में कर देना, क्योंकि पहले पॉइंट में हम लोकेशन लिखते हैं, ठीक है। Yes. आगे बढ़ो। Western Ghats are more in height. Eastern Ghats are less in height. Western Ghats height is 900 to 1600 meter. Eastern Ghats height is 600 meter. Main rivers of rivers drain into Arabian Sea that rises from here. And rivers drain into Bay of Bengal that rises from Eastern Ghats.
हाँ, और Anemudi is the highest peak in हाँ Western Ghat and हाँ Mahendragiri is the highest peak in Eastern Ghat. हाँ ठीक है। जब तुम हाइट लिख रहे हो ना वेस्टर्न घाट का, तो उसी हाइट के बाद ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो उसी पॉइंट में कि द हाईएस्ट पीक इज Yes. अनेमुदी। और ईस्टर्न घाट का जब एवरेज हाइट लिख रहे हो, एवरेज हाइट, तो उसमें महेंद्रगिरी का भी मेंशन कर दो। ठीक है, तो ये हो गया माउंटेन के बारे में। अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से स्लोप पे ज्यादा रेनफॉल होता है, वेस्टर्न घाट माउंटेन के वेस्टर्न स्लोप पे या इधर ईस्टर्न घाट माउंटेन में? Western Ghat. हाँ, वेस्टर्न घाट Western माउंटेन, Ghat. हाँ उधर इसी ज्यादा से heavy रेनफॉल है। rainfall. क्यों ज्यादा रेनफॉल है? क्योंकि इधर से साउथ वेस्ट मानसून आती है ना, अरेबियन Yes, सी ma'am. से साउथ वेस्ट मानसून पहले इसी रीजन में रेनफॉल लाती है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न स्लोप ऑफ द माउंटेन इसमें। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा रिवीजन हो गया आज का।